Assalamu alaikum. I hope all of you are having a very, very good day. Here I am, Seemal Bilal, bringing you another very exciting, very interesting session of Source Code all about ITU. So what we usually do at Source Code is that we bring forward, we bring in the limelight our amazing faculty, staff, and at times our brilliant students as well, who are doing some amazing work almost every day here at ITU. But they're doing it usually very, very quietly. So what we do is we get them ready, we bring them onto the camera, and here they talk about their experience at the university, outside of the university also, and all the good, amazing things that they do every day. So, continuing that particular tradition, we are welcoming today in our studio Dr. Haris Khan. Assalamu alaikum. Walaikum Assalam. Thank you so much for having me and such a wonderful introduction. I don't know if I deserve it, but yeah, thank you so much. No, you do. Going into further details, Dr. Haris Khan is a part of the Humanities and Social Sciences faculty here at ITU. He has a PhD from LUMS in management and a specialization in finance, I understand. That is correct, yeah. But interestingly, यहाँ पर story में थोड़ा सा twist आता है वो ये है कि before his PhD, he has an MBA degree and a bachelor's in computer science from IBA Karachi. Am I right? Bachelor's in Computer Science from Karachi University. Okay. And MBA from IBA Karachi. I Excellent. also get this mixed up. No, but it's very interesting to know क्योंकि हम obviously जब भी किसी faculty member से बात करते हैं तो we love to talk about their teaching experience and everything, but seldom do we get time to shed light on their academic journey as well. तो आपकी क्योंकि वो interesting रही है मैं ज़रूर उसके बारे में बात करना चाहूँगी because there are many students out there जो at times bachelors के बाद भी they rethink their journey कि okay is this field for us or not, मास्टर्स करें ना करें. मैं भी उसी तरह का एक स्टूडेंट रही हूँ. बैचलर्स मेरा इकोनॉमिक्स में था तो बस आई सॉर्ट ऑफ जस्ट वेंट विद द फ्लो एंड डिड एन एमफिल इन इकोनॉमिक्स एज वेल विदाउट गिविंग इट मच थॉट. नाउ व्हेन आई लुक बैक आई समटाइम्स थिंक कि अच्छा मे बी आई कुड हैव चेंज्ड माय मेजर और फॉलोड अप अनदर ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स रियली. तो आपसे हम बात यहीं से स्टार्ट करेंगे. टेल अस मोर अबाउट योर academic journey as a student and then we'll move forward to your professional journey. Sure. So basically, I would be lying if I say that since I have reached here, let's reverse engineer the story. So when I was doing undergraduate, looking for options, like everybody else and the students listening, there's very little career counseling. There, absolutely. And I think you must be exposed to that as well. And people really try to do their best within their means. So what I did, I will be very, very honest. I actually followed my heart in every degree that all my journey. So I was very, very passionate. I'm still very, very passionate about technology. And so I did my undergraduate in computer science. And we'll be talking about the professional experience later. But when I was working, I realized that the labor side of technology might not be that rewarding. So True, it will be So I'm sure because you're a seasoned person, so it will be very beneficial to remain in the technology field or transition in such a way that you are coming from a business side. So while I was working, I did my MBA from IBA Karachi while working, and it was a really a task in stress management and time management. So it taught me a lot. So when I did that, afterwards I approached industry for work which was more connected to finance. But I'll tell you something, MBA is a different skill set and a PhD or some other specialization in finance is a different skill set. So MBA gives you it's a master's in business administration, so it teaches you how to administer a business. It's a different skill set. So it also tells you marketing, finance, supply chain, the whole business fabric. But if you want to really understand the financial system in detail, an MBA is not enough. You need something else. While I was studying my MBA from IB Karachi, I realized that I really have some kind of need or desire to understand the whole economic fabric and the economics of money and capital, which is finance. Right. So by the time I was doing my MBA, I realized that you can do anything as long as you can do it marketable. This is something, So wise words. I mean, this IBA, I owe a lot to IBA in terms of shape because I was a real nerd, not very social.
and so easily I'm talking to you. Also, credit to you for being so friendly. But this MBA really told me that how to, you know, sell yourself and present yourself, and also how to make anything marketable. So I realized I want to learn the whole finance and everything, and then I'll make it marketable on my own. So I said, what to do now? So there are a lot of options. You can go for a CFA, professional depth in finance, and then there is this academic depth. So I took a job in teaching before deciding what to do. Oh, before your PhD. Before my PhD. Right. So I did it for around 1.5 years. I taught in Muhammad Ali Jinnah University. We'll be talking about the professional experience later. All right. But you can merge it into Merge it. So I'll be very at a high level. So I did that work to see if I can pull this off and will I like it. So I realized, okay, this is something that I can do. And also, very few people understand that professional depth in a certain way in professional degrees kind of make you specialize and takes the liberty of a flexibility out of you as a professional. A PhD in finance or something else, especially in finance, really gives you the power to do anything in finance, because the PhD preps you for doing independent work, understanding the depth, and taking decisions on your own. Right. It's very ironic that it's very, very entrepreneurial in a very different sense, but you need to look at it in a certain way. So, for example, if I want to start my consulting in finance, I can literally do it. So this is what it is. And the good thing about teaching is that once you are seasoned enough, you can start collaborating with the industry, which is a win-win for both the university that you are in. Absolutely. And your passion for connecting to the industry as well. So for strategic reasons, I went for a PhD in finance. So this is my academic journey. I'm sorry if I talked too much. Sorry. No, that's perfectly all right. That's why you're here. Oh, yes. Because we want, you know, some insightful and some suggestions and some good ideas coming out for our students and potential students as well. Right. तो अब कुछ एकेडमिक जर्नी के हवाले से आपने बात की, तो अब हम आते हैं आपकी प्रोफेशनल जर्नी की तरफ. जैसे कि आपने जिक्र किया पीएचडी से पहले भी यू टॉट फॉर अ शॉर्ट वाइल एंड देन आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. बहुत लेंथी शायद ना हो, आप बताएंगे कितने सालों का था, कि इंडस्ट्री का भी आपका ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है ऑफ वर्किंग विद मल्टीपल लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस. ये बात आपकी बिल्कुल सही है. बेसिकली जब मैंने अंडर ग्रेजुएट किया कंप्यूटर साइंस में, तो मैंने डेफिनेटली इंडस्ट्री ज्वाइन की. एक्चुअली फन फैक्ट, मैंने सबसे पहली जॉब जो की थी वो आईटी सेल्स में की थी. नॉट मैनी पीपल नो दैट, एंड आपको वो लिंक्डइन पे भी नज़र नहीं आएगी, मेरी सीवी पे भी कहीं नज़र नहीं आएगी. इट्स अ सीक्रेट. आई डोंट नो, मैं इसको ज़्यादा अगर बता रहा हूँ, लेकिन मैंने जब मैं वैसे तो अपनी रिसर्च की तरफ बाद में आऊँगा, मगर अल्लाह ने कहीं ना कहीं मुझे वो इशारा दिया था. मैं देख रहा था चीज़ों को, या कुछ लोगों की अपनी एक वो होती है नज़र, मुझे लगा कि ये कुछ इसमें गड़बड़ है. तो मुझे लगा कि मुझे पहले जो है देखना चाहिए कि क्या मैं इस डिग्री को बिज़नेस कैपेसिटी में इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं. तो मैंने आईटी सेल्स में काम करा. इट वॉज नॉट, वो कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, मगर मैं सीखने के लिए कर रहा था, पैसों के लिए मैं कर भी नहीं रहा था. वहाँ पे करके मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझसे नहीं होगा. इसके लिए मुझे फॉर्मल ट्रेनिंग चाहिए, उनका भी पैसा बर्बाद करूँगा, वक्त बर्बाद करूँगा. तो फिर मैंने वो वाली जॉब्स की जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ थी. तो फिर मैंने ज्वाइन किया यूबीएल को. तो ओमनी हम लोगों ने लॉन्च किया था. तो उसका नाम पहले ओरायन था. तो वो यूबीएल के कस्टमर्स को लॉन्च हुआ था. जब उसकी कमर्शियल रेडीनेस डेवलप हो गई, तो फिर उसकी कमर्शियल लॉन्च हुई ओमनी में. उस वक्त तक ईजी पैसा आ चुका था. एक्चुअली मैंने जब MBA भी कर रहा था, तो हमारे जो मार्केटिंग के हेड थे नजीब आगरावाला, यूबीएल के वो पढ़ाने आते थे. वो एक्चुअली चीज़ों को देख रहे थे. तो मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा कि ये आप लोगों ने क्यों ऐसा किया, क्यों ईजी पैसा को आने दिया, और यूबीएल ओमनी को क्यों नहीं आपने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने दिया. उन्होंने कहा ये डिपेंडिंग मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं. मैं ये इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स भी सुन रहे होंगे और उनको भी स्ट्रैटेजीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि एक टेक्निकल नॉलेज लेना एक काफ़ी नहीं होता, आपको बिजनेस में भी पता होना चाहिए. तो उन्होंने कहा कि कभी कभी मार्केट को डेवलप करना पड़ता है, और अगर वो किसी और के खर्चे पे डेवलप हो रही है तो होने दो. तो एंड इट एक्चुअली वर्कड इन अ सेंस कि इट वाज लेस कोलैटरल डैमेज फॉर, आई मीन it was a good strategy. I don't think I should talk about that. It's not something I need to talk to. कि मुझे इस पर करनी चाहिए. लेकिन ये कि हाँ, तो फिर वो मैंने उसमें काम करा.
फिर उसके बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोजेक्ट आया हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में वैसे प्रोजेक्ट देता नहीं है, लेकिन उसने थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू, टाइलर टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू जो है यहाँ पाकिस्तान में माजी ग्लोबल को पार्टनर करके माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स ERP उनकी है, जो वो ऑरेकल फाइनेंशियल्स और सैप तो नहीं, खैर ऑरेकल फाइनेंशियल्स के कंपटीशन में लॉन्च कर रहे थे। तो उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई यहाँ पर, उसमें यहाँ पे मैंने पाकिस्तान में 4-4.5 साल काम किया उनके साथ। Nice. और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में BSI स्टील की डिप्लॉयमेंट भी हमने करी। Okay. तो वो बिज़नेस का एक्सपीरियंस साथ साथ मेरा चल रहा था। और फिर चूँकि मैं अपने काम में ये सोच बैठा था कि मुझे टेक्नोलॉजी को रखना है लेकिन बिज़नेस को भी समझना है, तो फिर मैंने अपना जो ट्रांजिशन किया वो मैंने क्वालिटी एश्योरेंस में ज़्यादा रखा। और UBL में भी जो मेरी जो जॉब थी वो फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस पे ज़्यादा थी। Right. क्योंकि हमने जो इंजन बनवाया था, UBL वालों ने जो इंजन बनवाया था वो टेक्नोलॉजिक से बनवाया था, जो सॉफ्टवेयर हाउस था, मगर हम उसकी बिज़नेस देख रहे थे। तो माजी ग्लोबल में भी हमारी फंक्शनल टीम जो है वो बिज़नेस डिसाइड करती थी और टेक्नोलॉजी डेवलपर्स को हम लोग गाइड करते थे कि किस तरह से। So you were working while you were doing your MBA side by side, am I right? दैट इज़ करेक्ट, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी दैट। क्योंकि मैं तो ऑफ कोर्स जब आप एक नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, मैंने माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन करा इन अ वेंडर कैपेसिटी। तो पहले तो आपको अपनी एक रेपुटेशन बनानी होती है, काम करना होता है, अपने आप को प्रूफ करना होता है। तो वो जब एक हो गया तो फिर मैंने ऑफ कोर्स आई टॉक टू माय बॉस एंड एवरीथिंग कि इस तरह से होगा, क्योंकि हमारा ये भी था कि हमारी जो जॉब थी उसमें आखिर के 3 घंटे जो रात के होते हैं ना, वो क्लाइंट मीटिंग्स के साथ है, क्योंकि टाइम जोन डिफरेंस था। तो उन्होंने कहा हाउ विल यू पुल इट ऑफ बिकॉज यू आल्सो हैव इवनिंग क्लासेस। मैंने कहा आई पुल इट ऑफ, आई विल डू कॉन्फ्रेंस कॉलिंग फ्रॉम माय फोन एंड आई डिड दैट एंड इट वर्कड आउट बिकॉज आई टुक माय लैपटॉप एंड एवरीथिंग। सो आई टेल यू इट्स ये स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट और रिसोर्सेज को हैंडल करने की। तो वो हमने किया। उस दौरान मैंने MBA किया और ज़ाहिर है वो MBA मेरे माइक्रोसॉफ्ट के एक्सपीरियंस में भी काम आया, क्योंकि वहाँ पर भी लोग देखते थे कि मैं किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। खैर एनीवे, तो BSI की डिप्लॉयमेंट के बाद साउथ अफ्रीका की, फिर मैंने कहा कि अब मुझे बिल्कुल ही निकलना है IT से और कोई ऐसा काम करना है जो मुझे MBA को ही मैं इस्तेमाल करता हूँ। IT में तो मैं कभी भी वापस जा सकता हूँ, वो कोई मसला नहीं है। तो मैंने कई जगह अप्लाई किया। सो मेरी कुछ रिलीजियस बाउंड्रीज़ हैं, वो सो फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी मेरा कई जगह हो गया था फाइनेंस कैपेसिटी में, लेकिन उसमें मसला ये होता है कि आपको जो है वो इंटरेस्ट से रिलेटेड काम करना पड़ता है और वो सारा कुछ ना, तो वो चीज़ मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है एज अ पर्सन। एवरीबडी फॉर टू ईच देयर ओन। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये थोड़ा सा तो के इलेक्ट्रिक, अगर आपको पता हो पहले जो है अब तो उसका नाम के इलेक्ट्रिक है, तो उसमें हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस में, मुझे फिर वहाँ पे ऑफ़र आई जिसमें वो टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का मैनेजमेंट का मर्जर था। तो वो लोग सैप को डिप्लॉय कर रहे थे अपने बिजनेस सेंटर्स में। तो 9 बिजनेस सेंटर में हमने उसको रोल आउट किया। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस में मैं था। तो वो एक मुझे लगा कि ऐसी जॉब है जो मैं के पुल, बट देन अगेन चूँकि वो परमानेंट जॉब थी एंड एवरीबडी काइंड ऑफ कर्स्ड मी कि व्हाई यू लेफ्ट इट, बट आई वाज लाइक आई थिंक आई एम क्रेजी। सो मैंने कहा कि यार नहीं, मुझे फाइनेंस को समझना है, तो PhD करना है, तो फिर मैंने पहले दरिया में एक पैर रख के देखना है। तो फिर मैंने मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लिया एज अ लेक्चरर। वहाँ पे मैंने टीचिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के कोर्सेज, वो सारे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में मैंने करा था। तो फिर मैंने वहाँ पे करा, देखा कि हाँ ये कुछ ऐसा है कि जो मेरे दिल और दिमाग दोनों को समझ आ रहा है। गुड। तो वो मैंने करा एंड देन आई वेंट फॉर अ PhD, अप्लाइड फॉर PhD एंड ऑल। तो वो मैंने करा। उसके बाद फिर मैं जब PhD कर रहा था तो कोविड आ गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा अपना काम तो हो चुका था, तो सुपरवाइज़र की तरफ से इंटरनल क्लियरेंस थी। तो मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ लाहौर में मैं किसी को जानता नहीं हूँ। आई नीड टू फाइंड वर्क बिकॉज द फंडिंग हैज़ स्टॉप्ड, टाइम हैज़ पास्ड। तो फिर मैं गया कराची में मुझे सर सैयद यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गई। वहाँ पे मैं तकरीबन 1.5 साल काम किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, ऑफ कोर्स क्योंकि मेरा पुराना था। तो वहाँ पे भी मैंने काम करा, लेकिन मैं आपको भी इससे पहले भी हमारी बात हो रही थी कि आई फेल इन लव विद लाहौर द मोमेंट आई सॉ इट। मैंने कहा यार ये मुझे चाहिए, कुछ भी करके मुझे लाहौर चाहिए। तो आई केप्ट पुशिंग माई सेल्फ, अप्लाइंग हेयर एंड देयर कि यार मुझे लाहौर में कुछ मिल जाए। तो थैंकफुली अल्लाह ताला ने किस तरह से मुझे ये जॉब दिलवा दी। Lucky for us also, because I must mention that Dr. Haris Khan is very popular among his students as well, because I'm also a part of the academics office here and I know कि बच्चे आ रहे होते हैं enrollment के लिए, हमारी caps पूरी हो चुकी होती हैं, but then you know he's very kind enough to accommodate additional requests as well.
So I think lucky for ITU that you bring all your amazing experiences and you share it with the students here so selflessly. आपका माशाल्लाह सिर्फ एकेडमिक एक्सपीरियंस बहुत अच्छे बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस का नहीं है, उसके अलावा इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है. एंड आई मस्ट से मुझे कभी कभार ये ज़रूर फील होता है कि समटाइम्स जब हम देखते हैं कि बिल्कुल द ब्राइटेस्ट ऑफ माइंड्स, वेरी ब्रिलियंट पीपल, they go to the industry and they get so absorbed they can't really come back. वो at times हमारी कोशिश भी होगी कि adjunct faculty के तौर पे, visiting faculty के तौर पे हम उन्हें engage कर पाएँ, मगर उनके पास वक्त नहीं होता. तो I think lucky for our students कि आप माशाल्लाह you had that amazing experience, very rich experience, and you brought it and you've joined the teaching line now. और जहाँ अब आप students को पढ़ाते हैं तो I'm sure आपके पास बड़ी अपनी examples होंगी real life की जो आप share कर पाते होंगे students के साथ. डेफिनेटली, एंड आई थिंक यही हमारी कमाई है. एब्सोल्युटली. तो वो है. बाकी ये है कि मुझे ये लगता है कि इंडस्ट्री से वापस आना कई लोगों के लिए मुख्तलिफ वजूहात पे मुमकिन नहीं होता होगा, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि एकेडमिया में आने के बाद इंडस्ट्री में जाना तो कभी भी मुमकिन है. एब्सोल्युटली. तो वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है. अब मुझे ये बताइएगा, आपका इंडस्ट्री का भी माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का भी है, इंस्ट्रक्टर की कैपेसिटी में भी, स्टूडेंट की कैपेसिटी में भी. When you see ITU and you see the degrees and the program that we offer here, उसमें एक BS ETS है, that's BS Economics with Data Science. तो आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? बिकॉज माशाल्लाह मार्केट में हम देखते हैं हमारे ग्रेजुएट्स की मार्केट एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है, अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर एक्चुअली लुकिंग टू हायर ITU graduates. So from your point of view, what do you think is the difference that makes ITU stand out among other universities offering similar programs? आई थिंक एक तो सबसे अच्छी बात जो है वो ITU की ये है कि ITU इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, रिगार्डलेस ऑफ विच डिपार्टमेंट इट इज़. तो ब्रांडिंग जो होती है वो हमेशा ट्रिकल डाउन होती है और स्पिल ओवर होती है. तो बहुत सारे लोग जब आते हैं तो वो ITU की वजह से भी आते हैं, एंड देन दे गेट एक्सपोज टू इकोनॉमिक्स एंड एवरीथिंग. तो वो चीज़ है. फिर एक और चीज़ भी है जो कि मैंने ज़ाहिर है अपनी एकेडमिक जर्नी में भी सीखी, वो ये कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री डज नॉट डिफाइन यू. आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट एवरी स्टूडेंट्स नीड्स टू नो. बहुत फ्रैंकली मैं बताऊंगा कि बहुत सारी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज स्टूडेंट्स जो हैं वो कभी माँ बाप के प्रेशर पे कर लेते हैं. बिल्कुल. कि ये हम चाहते हैं हमारा बेटा ये बने, और कभी रिश्तेदार या कोई दोस्त की देखा देखी या कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो जहाँ भीड़ चाल होती है. बिल्कुल ऐसे. तो वो एक बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का. और ये अच्छी बात इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है ना वो आपको एक फ्लेक्सिबल रिसोर्स के तौर पे तैयार करती है, और द मोर फ्लेक्सिबल इट इज़ द बेटर. ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि नोबडी नोज़ कि आगे 6 से 8 सालों में जॉब्स कौन सी चाहिए होंगी. बिल्कुल ऐसे ही. और ये बड़ा अनफेयर होगा कि स्टूडेंट्स को कहा जाए कि तुम ये कर लो क्योंकि ये होगा. तो ये बड़ा बहुत ही ख़तरनाक अनसर्टन है. And I keep interacting with Gen Z because this is who are teaching, and they are very very smart people. They are very smart people. उनके attention span का एक अलग वो है, लेकिन they are very smart once they put their focus. तो मैंने ये देखा है कि at least in my classroom experience I've seen कि learning is a two-way street. मैं Gen Z से भी बहुत कुछ सीखता हूँ, और मैंने ये देखा है कि अगर हम उनको वो सारी बातें बता देना जो फैसला करने के लिए ज़रूरी हैं तो वो अच्छा फ़ैसला लेते हैं. बिल्कुल. बहुत अच्छा फ़ैसला लेते हैं. पहले जो टीचिंग होती थी उसमें काफ़ी जनरेशन गैप भी इन्वॉल्व होता था. हमारे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की एक बड़ी खासियत यह है कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द फैकल्टी इज़ यंग. तो वो जो जनरेशन गैप के साथ एक डिस्टेंस और नॉलेज की जो ऑब्सोलेसेंस आती है ना, वो जो है ना वो आपको नज़र नहीं आएगी हमारे डिपार्टमेंट में. मैंने देखा टीचर्स, इंस्ट्रक्टर्स here are very easy to reach out to as well, because I've also studied in different institutions, और मैं ये देखती थी कि एक जो आपने बात की जनरेशन गैप की, वो भी ज़्यादा होता था हमारे यहाँ. वो भी जो एक ट्रांजिशन आई थी कि पीपल हु डिड those 2 year बैचलर्स, 2 years मास्टर्स, वही बाद में 4 साल की डिग्री प्रोग्राम्स को पढ़ा रहे होते थे, तो वो उनके लिए भी चेंज था. इट वॉज डिफिकल्ट फॉर देम टू अडेप्ट टू द न्यू टीचिंग सिलेबस एंड मेथडोलॉजीज एज वेल. तो वो गैप भी ITU में बहुत कम नज़र आता है. फिर मैं देखती हूँ बिकॉज मे बी द टीचर्स आर यंगर, अब दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन,
दे आर मोर सेल्फलेस, और बच्चे भी उनके साथ इंटरेक्ट करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ईजी होते हैं, एंड दैट्स नथिंग यू नो टू बी ऑफेंडेड अबाउट। को बहुत बुजुर्ग सीनियर देखेगा तो कहेगा ये स्टूडेंट कैसे टीचर से बात करे, या टीचर स्टूडेंट से कैसे बात करे, बट दैट्स एक्चुअली यू नो गुड फॉर द कमिंग जनरेशन एंड फॉर स्टूडेंट्स एज वेल। टीचिंग इज अ सेल्फलेस जॉब। आप यू कांट डू इट फॉर मनी, एंड आई मीन सो इट्स नॉट लाइक दैट। If you want money, you have to find different avenues. They can find, you can't make education a business venture. It's a public service. तो वो चाहे आप किसी भी कैपेसिटी में करें। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि एक तो ये मैंने आपको बताया कि ITU की जो खासियत है कि इसमें यंग फैकल्टी हमारे डिपार्टमेंट में। दूसरी बड़ी खासियत ये है कि ITU जो है ना वो एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है। Absolutely. और हमारे डिपार्टमेंट भी उसका वो है। अच्छा, एक बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि लोग समझते हैं कि रिसर्च यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि, और उसका असल बेनिफिट ये है कि स्टूडेंट रिसर्च करेगा, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है। पहली बात तो ये है कि एकेडेमिया की मार्केट बहुत थिन होती जा रही है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ लेबर मार्केट, एंड आई विल कम टू दैट व्हेन आई टॉक अबाउट माई रिसर्च। तो आई थिंक द रियल बेनिफिट ऑफ अ रिसर्च यूनिवर्सिटी इज़ दैट कि जितनी भी फैकल्टी होती है ना, वो करंट कन्वर्जेशन इन लिटरेचर, इंडस्ट्री और जो कुछ हैपनिंग हो रहा होता है उसके साथ वो बिल्कुल अप टू डेट होती है। और उनकी जो क्लासरूम की जो डिस्कशन होती है ना, वो हमेशा इवॉल्व हो रही होती है। आपको हर सेमेस्टर में जो डिस्कशन होगी पुराने सेमेस्टर से मुख्तलिफ नजर आएगी, बिकॉज कुछ ना कुछ हो चुका होगा। और चूंकि फैकल्टी जो है रिसर्च में अप टू डेट होती है, तो वो हमेशा उससे इन्फॉर्म कर रही होती है। हमारे बहुत सारे फैकल्टी मेम्बर्स अपने लेक्चर, अपने डिस्कशंस के अंदर रिसर्च पेपर्स इन्वॉल्व करते हैं इंस्टेड ऑफ बुक्स, जो कि तकरीबन 10-12 साल पुरानी होती हैं, जबकि रिसर्च पेपर 1-2 साल पहले आया हुआ होता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है रिसर्च यूनिवर्सिटी होने का, चाहे स्टूडेंट रिसर्च करे या ना करे। अगर आप इसको कंपेयर करें विदाउट नेमिंग एनी अदर यूनिवर्सिटी, एनी अदर टीचिंग यूनिवर्सिटी, उसमें आपको लगता है कि शायद रिपीटेड जो सेम मटीरियल रिपीट हो रहा है ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम। तो वो आई थिंक एक बहुत बड़ा बेनिफिट है रिसर्च यूनिवर्सिटी होने का, कि आप जो है स्टूडेंट को करंट इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसको यूज़ करके वो अपनी करियर स्ट्रेटजीज डिज़ाइन कर सकता है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग Definitely, that's very important, and maybe that is why they say teaching also keeps you young. आप interact बच्चों के साथ करते हैं, और रिसर्च वाला आपने बहुत अच्छी बात शेयर की कि then it changes the environment. और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैं ज़रूर ये बात करना चाहूँगी that ITU is one of the pioneer गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो रिसर्च सेंट्रिक रही हैं, जिनका मेन फोकस ये रहा है कि हमने फैकल्टी को टीचिंग लोड भी देना है, सो द स्टूडेंट्स कैन गेट द बेस्ट दे कैन आउट ऑफ अ गुड रिसर्चर एज एन इंस्ट्रक्टर एज वेल, और अपनी फैकल्टी को वो टाइम और मार्जिन भी देना है सो दे कैन फोकस ऑन देयर research also. I really owe it to ITU for giving us the breathing space for research and everything, because यहाँ पे काफ़ी moderate teaching load है और बहुत इंकरेज करते हैं रिसर्च को, ना सिर्फ रिसर्च को बल्कि क्वालिटी रिसर्च को इंकरेज करते हैं, और यही चीज़ें हैं जो ITU को टॉप में ऊपर रखे हुए हैं। बिल्कुल, और इंशाल्लाह रखे रहेंगी, क्योंकि देयर आर सो मेनी गुड पीपल अराउंड हु आर स्टिल कीपिंग द सेम थिंग हैपनिंग, सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो हम अभी कॉन्वर्सेशन को तो क्लोज नहीं करें, बट आई फील लाइक वी आर क्लोजिंग अ सेगमेंट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। ITU में इनटेक 2026 के एडमिशंस ओपन हैं, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स और पोटेंशियल स्टूडेंट्स वुड बी लिसनिंग टू अस और वाचिंग अस राइट नाउ। उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहें, मे बी पर्टिकुलरली अबाउट फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज और जनरली अबाउट ITU? यस, आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि विद द लैक ऑफ करियर काउंसलिंग इन दिस कंट्री इन जनरल, किसी ना किसी को ये काम करना है, और हमारी मतलब टीचिंग इज़ स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, तो हमें उस पेडिस्टल पे बैठना होता है और उस इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना होता है। मैं ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन इकोनॉमिक्स डिग्री, एंड अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन इकोनॉमिक्स डिग्री स्पेसिफिकली एट ITU। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीपल मस्ट बी लुकिंग एट सो मेनी ऑप्शंस। ट्रू। और ये कहना कि ये करो या ये ना करो, मुझे लगता है ये ज़्यादती होगी स्टूडेंट के साथ, क्योंकि वो ज़्यादती मेरे साथ होती अगर मुझे कोई ज़बरदस्ती करता। राइट। तो हम ये कर सकते हैं कि उनको ये बता दें कि इकोनॉमिक्स में आने का क्या मतलब है, और देन दे कैन डिसाइड फॉर देमसेल्व्स। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स की एक बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ स्कैरसिटी, ट्रेड ऑफ्स एंड हैंडलिंग स्कैर्स रिसोर्सेज, which is a kind of a vital skill that is useful everywhere. True.
आई मीन देयर इज इकोनॉमिक्स ऑफ मार्केटिंग कि आपको अपनी मार्केटिंग का बजट जो है वो जो है प्रॉपर्ली करना है. देयर इज इकोनॉमिक्स ऑफ हाउस होल्ड विच इज़ होम इकोनॉमिक्स. देयर इज इकोनॉमिक्स ऑफ मनी एंड कैपिटल मार्केट्स विच इज़ फाइनेंस विच आई हैव डन. देयर इज इकोनॉमिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी कि आप टेक्नोलॉजी को किस तरह प्रॉफिटेबल बनाएं और उसके नेगेटिव स्पिल ओवर जो है एनवायरनमेंट में ना हो, और उसको आपने प्राइस कैसे करना है प्रोडक्ट में ताकि आप जो हैं वो नुकसान में भी ना हो. ये सारी प्राइसिंग, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें, उसके लिए आपको एक पैनोरामिक व्यू चाहिए होता है. एक बात. दूसरी बात ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त बहुत अनसर्टेन एनवायरनमेंट है. I think it will be very better if I start a little bit about what I found about my research and then continue it with the economics degree program. Because when I did my research, तो मेरे कुछ unanswered questions थे economics के at the intersection of finance and distribution of wealth. उसमें मैंने ये देखा कि जो मार्केट है ना वो डिवाइड हुई है लेबर और कैपिटलिस्ट में, और लेबर मार्केट जो है ना वो बहुत तेज़ी से श्रिंक होती जा रही है, और उसकी कई सारी वजूहत हैं. उसमें से एक वजह यह है कि कैपिटल जो है ना वो रिप्लेस कर रहा है लेबर को, और फॉर स्पेशली बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. क्योंकि पहले कैपिटल के साथ यही मसला था कि वो सोच नहीं सकता था, अब वो सोच सकता है, तो वो लेबर को रिप्लेस कर रहा है. तो अब जो है ना लेबर फोर्स का मुकाबला अपने फेलो लेबर से नहीं है बल्कि मशीन से है. और आप ये देख रहे हैं, पहले एक डिपार्टमेंट में 12 लोग होते थे, अब 2 लोग बैठे होते हैं, एक क्लिक करता है और दूसरा वेरीफाई करता है. ऐसा ऐसा ये भी ख़त्म होने वाला है जब, क्योंकि AI एजेंट्स आने वाले हैं. तो ये एक अजीब बात है. और इसमें ये नहीं है कि हम, जाहिर है हम यहाँ बैठे हैं और हम रिसेंट रिसर्च कर रहे हैं तो हमारा काम है सोल्यूशन बताना. तो मेरी जो इसमें टेक है, और द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट सोशल साइंस इज दैट इट इन्वॉल्व्स human behavior and free will, and which is driven by variety. So people have different opinion and there are multiple solutions, multiple correct solutions. This is physical system से ही मुख्तलिफ है. अगर आप किसी चीज़ को ज़मीन पे फेंकेंगे तो वही फार्मूले के तहत ही आएगी, बट जब आप किसी सोशल सिस्टम में इंटरेक्ट करते हैं तो फ्री विल इन्वॉल्व हो जाती है और आपके जो है ना डाइवर्जन ज़्यादा बढ़ जाता है. तो इसलिए जो मेरी टेक है वो मेरा पॉइंट है, ज़रूरी नहीं है कि उससे एग्री किया जाए. तो मैं ये समझता हूँ कि इसका सोल्यूशन ये है कि आप जो है कैपिटल साइड पे आ जाएं. सो यू नीड टू ओन कैपिटल एंड ग्रो इट. सो दिस इज़ वेयर आई थिंक माई टेक ऑन दिस थिंग इज़ कि इकोनॉमिक्स की डिग्री जो है ना वो आपको ये बेनिफिट देती है कि आपको एक पैनोरामिक व्यू जो है ना अंडर ग्रेजुएट में मिल जाता है बिफोर यू एक्चुअली डिसाइड ऑन अ सर्टेन स्पेशलाइजेशन. अगर आप इसको कंपेयर करें डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम से जो उसके कंपेयर में हैं, उसमें I wouldn't say you don't go, but you go if you are really sure कि हमने यही करना है. Exactly, because that's going to be somewhat of a specialization. Yes. और हम कह सकते हैं कि economics could be, you know, the parent degree. It is. Or the foundation of it. It really. is. Actually, that economics को जब आप complete करते हैं ना तो उसका shade change होता है जब आप कहते हैं economics of what. So economics of technology, economics of civil engineering, construction की economics of electronics, electronic devices, so on and so forth. So economics is the mother of everything. So if you're not sure about what to do and you want a breathing space and you want to meet a lot of educated people, seasoned people to help understand what to do, because इतनी uncertain environment है कि it's better to know more in time and take calculated risks. तो मुझे लगता है कि ये benefit जो है ना economics की डिग्री आपको provide करती है, और यही वो benefit है जो है ना. सो बेसिकली देयर आर 2 मेन एरियाज इन इकोनॉमिक्स. सो देयर इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें आप पूरी फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट और वो जो पूरी मैक्रो इन्वायरमेंट है, हाउ टू डील विद गवर्नमेंट एंड ऑल. सो इफ़ यू आर नॉट अ पार्टिसिपेंट इन दैट, यू आर अ कंज्यूमर ऑफ इट एज वेल ना, कि आप उससे एक्सपोज होते हैं. फिर देयर इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स कि एज एन इंडिविजुअल या एज अ फर्म आप किस तरह इसमें नेविगेट करते हैं. तो ये 2 जो स्किल्स हैं ना ये बड़ी वैल्यूएबल हैं. Absolutely. For anybody. Yes. It applies to almost everybody out there. Absolutely. So even for example, your media experience could have been much better. खैर आपने तो खैर इकोनॉमिक्स किया हुआ भी है, तो आई एम श्योर कि उसमें वो कहीं ना कहीं काम आया होगा. Absolutely. है ना, आया होगा. तो ये वो ऐसी चीज़ है जो आपको काम आएगी हमेशा, और ये आपको ब्रीथिंग स्पेस भी देगी. बिल्कुल. बिकॉज आपको एक रिलीफ भी मिलेगी प्रेशर से कि भाई ये कर लो और वो कर लो. यू कैन ऑलवेज स्पेशलाइज डाउन द रोड. तो वो चीज़ है. तो मुझे लगता है ये बेनिफिट है. ITU में आने से आपको जो बेनिफिट होगा इकोनॉमिक्स डिग्री का, एक तो जो हमने फैकल्टी की जो बात की है, जो हमारी स्ट्रेंथ है और जो रिसर्च यूनिवर्सिटी और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन की है, इसके अलावा एक और चीज़ है वो ये कि यहाँ पे बहुत अच्छा टेक इकोसिस्टम है. ट्रू. ठीक है. बिल्कुल. तो इसमें फॉर एग्जांपल
okay, let me also साथ में ही talk about the kind of courses I teach and the kind of value addition that I do, because I think we are short of time. Yeah. I realize that. So because cost benefit analysis. So मैं basically जो है managerial economics पे वैसे तो मैं सारा कुछ ही economics में पढ़ाता हूँ, लेकिन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम ये सिखाते हैं कि इकोनॉमिक्स को मैनेजमेंट में कैसे यूज़ करना है, और एंटरप्रेन्योरशिप में हम ये सिखाते हैं कि किसी भी तरह का स्टार्टअप, लीन स्टार्टअप कैसे क्रिएट करना है. तो उसके लिए जो हम फॉलो कर रहे हैं ना, वो MIT का बूट कैंप है, विच इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोग्राम. इट्स अ $15,000 प्रोग्राम. और वो नॉलेज जो है ना, मैंने रेप्लिकेट की है क्लासरूम में. और फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं, क्योंकि आप कोर्स ले रहे हैं, लेकिन इट्स वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस में, क्योंकि जो आप यहाँ पे कर रहे हैं. तो आपको ये बेनिफिट एक मिलता है. अच्छा, उन्होंने जो है ना वो ज़्यादातर टेक स्टार्टअप से बात की है, और आई थिंक वो मुझे बहुत पसंद आया. उसमें दो बातें पसंद आई, एक लीन स्टार्टअप और एक टेक स्टार्टअप. और वो बिल्कुल हमारी जो ITU की ऑन ब्रांड है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह वो लोग करते हैं, MIT भी ऐसा ही है ना. हम लोग बेसिकली MIT का ही ब्रेन चाइल्ड हैं, बिल्कुल, थैंक्स टू उमर सैफ. सही है. तो उसमें क्या है कि जैसे अब मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, अब तो पूरा ITU जो है वो बर्की कैंपस इंशाल्लाह ताला आने वाला है. तो आप मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में टेक के फ्रेंड्स बनाते हैं, तो आप एक सिनर्जेटिक टीम क्रिएट करते हैं जिसमें आप टेक स्टार्टअप कर सकते हैं. अच्छा, नाउ व्हाट द इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट ब्रिंग्स टू द टेबल, तो वो मैनेजमेंट एक्सपीरियंस या बिजनेस एक्सपीरियंस या इकोनॉमिक ब्रेथ और डेप्थ जो है ना वो लेकर आता है, जिसमें वो ये बताता है कि प्रोडक्ट को इस तरह शेप अप करना है और इस तरह मार्केट में प्लेस करना है. दिस इज समथिंग दैट टेक ग्रेजुएट कैन रियली यूज. तो वो एक सिनर्जेटिक टीम है, क्योंकि उनकी एक फोकस थ्रू आउट देयर जर्नी, एकेडमिक जर्नी इज कम्प्लीटली डिफरेंट, और वो उनका उधर फोकस होना बनता है, बट देन यू नीड समबडी टू मार्केट दैट प्रोडक्ट एज वेल. बिकॉज सक्सेस इज अ टीम वर्क. अगर सब लोग एक ही काम करेंगे तो बैठ जाएगी मार्केट. तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई डाउन प्ले कर रहा हूँ, ये मतलब नहीं था मेरा. मेरा मतलब ये था कि हर एक की अपनी स्ट्रेंथ है, और आप अपनी स्ट्रेंथ टेबल पे लेके आते हैं टीम बनाने के लिए. और ये बड़ा फायदा है कि यू कैन गेट अ लॉट ऑफ सिनर्जी हेयर. तो आप जब, और यही एक मसला है, क्योंकि मैं रिसर्च में भी देख रहा हूँ कि जॉब्स जो है ना वो तेजी से ड्राई अप हो रही हैं, तो द स्टूडेंट्स नीड समथिंग. सही है. और इट्स नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट, टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स को भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना है. तो ये एक हकीकत है, और हमारा काम है कि हम उनको बताएं कि अब क्या करो. बिल्कुल. तो हम ये कोशिश करते हैं कि आप बनाओ दोस्त, टेक स्टार्टअप पे काम करो. आप बेशक क्लासरूम में उन लोगों को भी ले आओ जो क्लास में नहीं है, हम उनकी टीमिंग अप करेंगे, आपको बताएंगे किस तरह से. तो एम्प्लॉयमेंट आप क्रिएट करो, इंस्टेड ऑफ आप जो है वो जॉब मांगो, आप जॉब दो. When we look at our alumni, जो हमारे graduate हुए students हैं, they have started, there's so many among them who've started very good startups and that are currently running very successfully as well. That is true. That is true. And I think we also tell our students that the success distribution is skewed more towards failure. और ये बताना उनको इसलिए ज़रूरी है ताकि वो पहले फेलियर के बाद अपने आप को जज करना ना शुरू करें और शिकस्त ना मान जाएं. तो उनको सहारा देना और उनका हाथ थामना कि ये होगा और तुमने आगे बढ़ना है. इसीलिए हमारा जो MIT का स्टार्टअप जिसको हमने पिक किया है वो लीन स्टार्टअप है, टेक होने के साथ साथ, ताकि आप जब गिरें तो आपको ज़्यादा चोट ना लगे और आप आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिकली, जैसे बच्चा चलना सीखता है ना, वैसे आप चलना सीखें. एंड वंस यू हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन, यू कैन नेविगेट कंफर्टेबली इन द मार्केट. और वो एक बड़ी बहुत ज़रूरी चीज़ है और वो सबके लिए ज़रूरी है. तो ये हम करते हैं. बिल्कुल. वेरी नाइसली सेड. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच for your time and for all, you know, the useful input you've shared with all those people who are watching us. I think ITU is lucky to have faculty members like Dr. Haris Khan and many others here who are not only, you know, serving as instructors here in the university, but they are acting as mentors for the students. जो अभी इन्होंने end पर एक बात की, एक मैसेज दिया, आप इसको बेशक दोबारा सुने. आई थिंक दैट्स द गुड थिंग अबाउट दिस वीडियो, यू कैन प्ले इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, कि वो वाकई इतनी अच्छी बात इन्होंने कही. एंड पर्सनली आई थिंक आई फील वेरी हैप्पी दैट वी हैव सच ग्रेट फैकल्टी members here at the university. With this, you people know what to do. You have to continue watching this space because we will be bringing more interviews, more faculty, students, staff interactions here for you to watch and to learn from. And also, since we have admissions going on for the 2026 intake at ITU, we're looking forward to have you here at the university.